Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, this is the chapter number 2 of your civics book, and today we will read about the Indian secularism different from the other democratic countries. So, in what way in Indian secularism different from that of the other democratic countries? Some of the objectives are similar to those that have been included in the constitutions of secular democratic countries in other parts of the world. For example, the First Amendment of the US Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. What is meant by the word establishment is that the legislature cannot declare any religion as the official religion, nor can they give preferences to one religion. In the USA, the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because, unlike the strict separation between religion and the state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affairs. You have read about how the Indian constitution intervened in Hindu religious practices in order to abolish untouchability. In Indian secularism, though the state is not strictly separate from religion, it does maintain a principled distance via and with religion. This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. चिल्ड्रन, अब देखिए जैसे कि हमारा जो भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो दूसरे देशों से दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से किस तरह से अलग है, भिन्न है। तो एग्जांपल देखते हैं। यूएस में एक लेजिस्लेचर के द्वारा एक कानून लाया गया जिसमें बोला गया कि जो रिलीजन है उसकी सभी लोग रिस्पेक्ट करेंगे और वहाँ पर जो रिलीजन है वो फ्री रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो रिलीजन है, जो लेजिस्लेचर है वो किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन घोषित नहीं करेंगे और इसके साथ साथ वो किसी भी रिलीजन में इंटरफियर नहीं करेंगे। तो यूएसए जो है वहाँ पर रिलीजन और जो गवर्नमेंट है वो एक दूसरे से सेपरेट है। वहाँ पर स्टेट और जो रिलीजन है वो एक दूसरे के कामों में इंटरफियर नहीं करते हैं। लेकिन हमारे भारत में थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे भारत में जो है वो संविधान के अनुसार यदि कहीं पर ज़रूरत होती है तो जो गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल की हो चाहे स्टेट की हो, वह जो रिलीजन के जो काम होते हैं, जो भी उनकी आस्था होती है, यदि उनके बिहेवियर ऐसे हैं कि दूसरे की अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो उसमें इंटरफियर कर सकती है। तो ये हमारे यहाँ का जो सेकुलरिज्म है थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरों के यहाँ से। मतलब हमारे यहाँ का थोड़ा लचीला है। यदि कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को नुकसान पहुँचाता है या किसी भी तरह का कुछ गलत बोलता है या बोलने की कोशिश करता है तो उसमें जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा बनाया गया है कि जो स्टेट है या जो सेंट्रल है वो ऐसे कदम उठा सकती है गवर्नमेंट की उस जो गलत करने वाले को रोका जा सके या उसे दंडित किया जा सके। So children, here is your chapter finished. Let's see the exercise. Here is given the exercise. List the different type of religious practice that you find in your neighborhood. This could be different forms of prayer, worship of different gods, sacred sites, different kind of religious music and singing, etc. does this indicate freedom of religious practice? अब चिल्ड्रन आपको क्या करना है, आपके नेबरहुड में, आपके अड़ोस पड़ोस में या आपकी सोसाइटी में आपको देखना है कि डिफरेंट रिलीजन के जो लोग हैं वो अपनी प्रेयर कैसे करते हैं, उनके भगवान कौन हैं, उनकी कहाँ पर जाकर वो प्रेयर करते हैं और उनका म्यूज़िक है, सिंगिंग है, वो सब डिफरेंट किस तरह से है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी है आंसर में और आपको बताना है कि क्या ये इंडिकेट करता है कि जो हमारे देश के रिलीजन है वो फ्री है। तो चलिए आंसर देखते हैं।
So here is the answer. The different type of religious practices that we can see in our neighborhood are as follow. A Sikh person worship in Gurudwara to Guru Nanak using Guru Granth Sahib. A Muslim worship in a mosque and their sacred book is the Quran. This religious music of Muslim in Sufi. A Christian worships Jesus Christ in a church and their religious book in the Holy Bible. And the Hindu worship in a temple to the idols of gods and goddess. तो आप देख रहे हैं कि सिख जो है वो गुरुद्वारा जाते हैं और गुरु नानक जी की पूजा करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब उनका जो है वो धार्मिक ग्रंथ है। और इसके साथ मुस्लिम जो है वो मॉस्क मस्जिद जाते हैं और मुस्लिम सूफ़ी जो होते हैं वो उनके रिलीजियस म्यूज़िक बजाते हैं, गाते हैं और उनकी जो होली बुक है वो कुरान है। क्रिश्चियन जो है वो चर्च में जाते हैं, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं और उनकी होली बुक जो है वो बाइबल है। हिंदू जो है वो टेम्पल मंदिर में जाते हैं और वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो आंसर लिखेंगे कि दिस शोज दैट द पीपल इन इंडिया हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस एंड येट लिव टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी। यह शो करता है कि हमारे देश के जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं वो स्वतंत्र हैं, फ्री हैं और अपने अपने धर्मों को मानने की उन्हें स्वतंत्रता है और वो एक साथ शांतिपूर्वक रहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विल द गवर्नमेंट इंटरवेन इफ सम religious group says that their religion allows them to practice infanticide? Give reason for your answer. अब यहाँ पर बोला गया है कि यदि कोई ग्रुप बोलता है, रिलीजियस ग्रुप बोलता है कि हमारे धर्म में हम नवजात शिशुओं की हत्या कर सकते हैं, तो क्या गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर करेगी? आपको आंसर देना है। यस, द गवर्नमेंट कैन इंटरवेन इफ सम रिलीजियस ग्रुप सेज दैट देयर रिलीजन अलाउज देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड। हाँ, बिल्कुल करेगी गवर्नमेंट। हम इस तरह की यदि कोई बोलता है कि हमारे धर्म में नवजात शिशुओं की हत्या कर सकते हैं तो गवर्नमेंट उसमें बिल्कुल इंटरफियर कर सकती है। क्यों कर सकती है? दिस इज बिकॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट दैट द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू इंटरवेन इफ देयर इज अ थ्रेट टू सोशल हार्मनी। ऑल्सो किलिंग एन इन्फेंट इज अ क्राइम एंड द जुडिशरी इज द ओनली अथॉरिटी दैट कैन पनिश अ पर्सन टू डेथ एंड नो अदर रिलीजन और पर्सन कैन कमिट द क्राइम ऑफ किलिंग समवन। ये क्यों है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये बोलता है कि यदि कोई भी ऐसा काम हो रहा है जहां सोशल हार्मनी को नुकसान पहुंचे तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर कर सकती है और सिर्फ मृत्यु दंड देने का जो काम है वो सिर्फ जुडिशरी के पास है, मतलब जो न्यायालय होता है उन्हीं के पास है। बाकी और किसी भी व्यक्ति को हत्या करने का अधिकार नहीं है। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब यहाँ पर टेबल कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर दिए गए हैं और यह क्यों इम्पोर्टेंट है और एक एग्जाम्पल देना है इसके विरोध में कहाँ पर ऐसा हो रहा है जो कि इस जो ऑब्जेक्टिव दिया है इसके विरोध में चल रहा हो। तो देख लेते हैं। पहला तो है वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकती है, उसको हरास नहीं कर सकती है। सो क्यों इम्पोर्टेंट? इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन गिव द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल एंड इफ इट इज़ नॉट प्रोवाइडेड देयर मे बी चांसेस ऑफ रायोट्स एंड द डिस्टर्बेंस ऑफ हार्मनी इन द कंट्री। हाँ, ये सही है और ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सभी धर्मों को स्वतंत्रता पूर्वक भारत में रहने का अधिकार देता है और किसी भी को भी दूसरे की हार्मनी को नुकसान पहुंचाने का अधिकार नहीं देता, शांति को भंग करने का अधिकार नहीं देता है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो बहुत सारे दंगे वगैरह हो सकते हैं देश में। अब यहाँ गलत कहाँ पर हो रहा है? तो स्टॉपिंग द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल। किसी भी फेस्टिवल को मनाने के लिए लोगों को रोकना यह एक उसके विरोध में काम है। फिर है सेकेंड, द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। अब जो स्टेट है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है और किसी इंडिविजुअल को उसकी रिलीजियस फ्रीडम भी उससे छोड़ा नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट एवरी इंडिविजुअल इज अ कंट्री हैज़ द राइट टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। दिस इज़ व्हाट मेक्स द नेशन ऑफ सेक्युलर कंट्री। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश ने हर व्यक्ति को अपनी चॉइस के हिसाब से रिलीजन मानने का अधिकार दिया हुआ
है और हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री है। अब इसके अगेंस्ट में कहाँ पर हो सकता है, क्या अगेंस्ट में इसके होता है, तो इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन रिसाइड, हाउएवर पाकिस्तान हैज़ डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज एन इस्लामिक नेशन। अब देखिए ये कहाँ पर इसके विरोध में काम हो रहा है, हमारा भारत जो है बहुत सारे कास्ट के धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा देश सेक्युलर है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान जो उसने डिक्लेयर किया है अपने आप को इस्लामिक नेशन। तो ये इस जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बात है, इसके विरोध में है। Now that some members do not dominate other members of the same religious community, एक रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर्स दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर को परेशान नहीं कर सकते हैं। तो यह जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, रिलीजन कैन नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ और क्रीड, हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट नो मेंबर डोमिनेट्स अदर मेंबर्स फ्रॉम द सेम रिलीजन, फॉलोइंग देयर रिलीजन इज़ द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल। अब यह बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को भी कोई भी धर्म, किसी को भी धर्म या जाति या दूसरी चीज़ों के नाम पर डिवाइड नहीं करता है, और हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है और उसका ये हक भी है। और इसके विरोध में क्या काम होता है, तो उसे देखिए, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अपर क्लास हिंदूज एंड द दलित्स। अब इसमें देखिए अपर क्लास हिंदूज पहले के समय में, अब तो खत्म हो गया है लगभग, पहले के समय में जो अपर क्लास के हिंदूज थे वो दलित्स के साथ उन्होंने बांटा हुआ था अपने आप को, और उनके साथ में गलत व्यवहार भी करते थे, लेकिन अब वो सब काफ़ी कम हो चुका है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इतनी सुविधाएँ दी हुई हैं। Now question 4, look up the annual calendar of holidays of your school. How many of them pertain to different religions? What does this indicate? अब अपने कैलेंडर को, एनुअल कैलेंडर देखिए स्कूल का, और हॉलीडेज़ को उनमें देखिए और बताइए कि डिफरेंट रिलीजन की कौन कौन से ऐसी छुट्टियां हैं जो कि उसमें इंडिकेट की गई हैं। तो आंसर, द एनुअल कैलेंडर ऑफ आवर स्कूल मार्क्स हॉलीडे लाइक ईद which is celebrated by Muslims, Diwali which is a Hindu festival, Christmas which is celebrated by Christians, and Guru Nanak Jayanti which is a Sikh festival. This indicate that India is a secular country where religious freedom is guaranteed to its citizen and all religions are equally respected. Now question 5, find out some examples of different views within the same religion. Some examples of different views within the same religions are as follows. Hindu worship different idols of God and goddesses. Muslim are divided into Shia and Sunni. Followers of Lord Mahavir are called Jain. Buddhist followers are divided into Mahayana and Hinayan. अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि कुछ डिफरेंट व्यूज़, मतलब रिलीजन में ही एक ही धर्म में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग चीज़ों को मानने वाले। तो जैसे हिंदू हैं, हिंदू जो है वो अलग अलग तरह के देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। मुस्लिम है वो डिवाइडेड है सिया और सुन्नी मुस्लिम्स में। जो महावीर स्वामी को मानने वाले हैं वो जैन कहलाते हैं। जो बुद्ध भगवान को मानने वाले हैं वो भी डिवाइडेड है, अपने बुद्धिस्ट भी जो है वो डिवाइडेड है महायान और हेनयान में। तो इस तरह से डिवीजन रिलीजन में भी है, सेम रिलीजन में भी है। नाउ द इंडियन स्टेट both keeps away from religion as well as intervenes in religion. This idea can be quite confusing. Discuss this once again in class using examples from the chapter as well as those that you might have come up with. The Indian state both keeps away from religion as well as intervenes in religions, because if a person with a majority religious group gets the state power, he may use the power to discriminate and persecute the people of other religions. The majority may even deprive the minority of practicing their religion. For example, untouchability still exists in the Hindu community. If the state power is handed over to a person belonging to an upper caste Hindu majority, he may use it as a weapon against the lower class पीपल ऑफ द सोसाइटी और दैट स्टेट। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया कि कोई भी इंडियन स्टेट है तो वो किसी भी धर्म में इंटरफियर कर सकता है यदि उसे पावर मिल जाए तो ये जो आइडिया है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमें बताना है इसके बारे में एक एग्जांपल के थ्रू। तो हाँ, हमारा जो इंडियन स्टेट है सभी धर्मों को समान मानने वाला है, लेकिन इंटरफियर रिलीजन में हो सकता है। वो कैसे हो सकता है,
क्योंकि यदि कोई पर्सन मेजॉरिटी में है, यदि कोई एक कम्युनिटी, मान लीजिए पूरे हिंदू या पूरे मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में आ जाएंगे, तो बाकी के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ वो गलत व्यवहार कर सकते हैं। जैसे कि इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो गवर्नमेंट है वह फिर उसमें अपना इंटरफियर कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो अनटचेबिलिटी हिंदू कम्युनिटी के द्वारा की जाती थी, और यदि उनके पास फुल पावर आ जाए, गवर्नमेंट सेंट्रल में भी स्टेट में भी उन्हीं की हो जाए, तो वो जो है वो हिंदू मेजॉरिटी फिर वो गलत कर सकती है। अपर कास्ट जो है वो गलत कर सकती है लोअर कास्ट के साथ, या फिर कोई एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के साथ गलत कर सकता है। तो इसीलिए ये जो है हमारे लिए इसलिए व्यवस्थाएं की गई हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, फिर सबके अलग अलग अधिकार हैं, सबको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ता है, तो हमारा जो देश है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर पाए। नाउ क्वेश्चन 7, दिस पोस्टर अलोंगसाइड हाईलाइट्स द नीड फॉर पीस। इट सेज पीस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कैन नॉट इग्नोर आवर डिफरेंसेस और overlook our common interest. Write in your own words that you think the above sentence are trying to convey. How does it relate to the need for religious tolerance? This chapter had 3 drawing on religious tolerance made by students of your age. Design your own poster on religious tolerance for your peers. अब ये डिज़ाइन वाला आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है, ये पोस्टर बताया गया है और इसमें बताया गया है कि ये क्या कन्वे करने की कोशिश कर रही है। जो पोस्टर है ये बोल रहा है कि ये जो पीस है कभी भी ख़त्म नहीं होती है, पीस हमेशा ही ज़रूरी होती है, कभी भी समाप्त नहीं होती। तो इसका क्या मीनिंग है, तो चलिए देखिए। पीस, ये आपका पिक्चर जो है ये पेज नंबर 27 में दिया हुआ है, तो आप देख लेंगे। पीस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कैन नॉट इग्नोर आवर डिफरेंसेस और ओवरलुक our common interest. The above sentence say that for all the communities to stay together, it is very important that each religious community should respect the other, their interest and their religious practices. We should not feel bound by any law that we need to respect the other religion, whereas we should work towards decreasing the differences amongst religious communities and work towards bringing peace in the society as a civilized society. Only then we will be able to enjoy the coexistence of different religion in the society. तो ये जो बताया गया है इस पोस्टर में कि जो पीस है, जो शांति है, वो कभी भी उसकी प्रोसेस समाप्त नहीं होती है, और यह जो है यह सभी के लिए कॉमन इंटरेस्ट की बात है, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। यह सेंटेंस जो है ये बताता है कि सभी कम्युनिटीज़ को मिल करके एक साथ सभी धर्मों को की रिस्पेक्ट करते हुए रहना चाहिए, और किसी को भी किसी चीज़ के लिए बाउंडेड नहीं करना चाहिए, किसी को भी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए इससे जो है सारी सोसाइटी में पीस रहेगी और शांति रहेगी मीन्स, और इसके साथ साथ जो सोसाइटी है वो सिविलाइज्ड बन जाएगी और सभी धर्मों के लोग एक साथ मिल करके एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकेंगे। तो चिल्ड्रन, हियर इज़ योर चैप्टर फिनिश्ड। अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के देती हूँ। देखिए, आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव्स लेकर आई हूँ। सेक्युलरिज्म स्टेट्स दैट द स्टेट इज अगेंस्ट टू ऑल रिलीजियस, स्टेट एक्सेप्ट ओनली वन रिलीजन, स्टेट विल नॉट गिव एनी स्पेशल कंसर्न विथ एनी रिलीजन एंड नन ऑफ दिस। तो आपको इसमें मालूम है क्या आएगा, स्टेट विल नॉट कंसर्न एनी रिलीजन, आपका करेक्ट है। ओके, नॉन इंटरफेरेंस मीन्स, अब नॉन इंटरफेरेंस मीन्स क्या होता है, रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, रिस्पेक्ट ओनली वन रिलीजन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। अब नॉन इंटरफेयर, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाएगी, इसमें ये है आंसर इसका। ठीक है, तो इसमें आप डालेंगे एक, ए इज द करेक्ट आंसर। फिर हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस एक्सेप्टेड है, 22। नाउ द राइट प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स प्रोवाइड किए हैं वो क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल राइट्स। क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल राइट्स। नाउ फिफ्थ, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन आर्टिकल, अब जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो किस आर्टिकल में हमारे संविधान के, वो हमारे संविधान के ए वाला 25 to 29 ये वाले आर्टिकल में मेंशन है।
नाउ बंगाल वॉज डिवाइडेड बाय पॉलिसी। अब बंगाल जो डिवाइड किया था अंग्रेजों ने 1905 में डिवाइड किया गया था, और उन्होंने किस वजह, क्या सोच कर डिवाइड किया था, क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम की एकता बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई और फिर उन्होंने 1905 में बंगाल का डिवीज़न कर दिया। नाउ सेवेंथ, फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज दैट हैड मुस्लिम डोमिनेंस। अब मुस्लिम डोमिनेंस कौन कौन से हैं, तो मुस्लिम डोमिनेंस कंट्रीज ये तीनों हैं, ऑल ऑफ दीज, तुनासिया, मोरक्को एंड अल्जीरिया, ये तीनों मुस्लिम डोमिनेंस कंट्रीज हैं। नाउ एट्थ, वाई वॉज अनटचेबिलिटी एबोलिश्ड। अब अनटचेबिलिटी क्यों एबोलिश की गई, टू एंड द मुस्लिम इंडिया, टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, टू एंड द पॉवर्टी इन इंडिया, नन ऑफ दिस। तो इसमें से क्या आ जाएगा आपका, टू एंड द डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। नाउ नाइन्थ, the most important aspect of secularism is its blank of religion from state। अब इसमें क्या आ गया, the most important aspect क्या है सेकुलरिज्म का, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। स्टेट से सेपरेशन कर दिया जाए रिलीजन का, मतलब जो स्टेट है, गवर्नमेंट है जो भी, वो रिलीजन में किसी भी तरह का इंटरफियर ना करे। लेकिन वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब कोई ऐसी चीज़ आएगी जहाँ पर इंटरफियर करने की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर गवर्नमेंट इंटरफियर कर सकती है, जहाँ पर दूसरे धर्म को या दूसरी कम्युनिटी को किसी भी तरह का नुकसान हो रहा हो, तब गवर्नमेंट जो है इंटरफियर कर सकती है, या किसी भी तरह की शांति भंग हो रही हो तब। ओके, नाउ 10, इसको 10th कर लीजिए। 10th, मुस्लिम लीग डिमांडेड फॉर हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, 1 2 3 4, सो 2, द आंसर इज 2। ओके, सेपरेट असेंबली की मांग की थी मुस्लिम लीग ने कि अलग अलग असेंबली बना दी जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हुए, अब आप इनको कर लेंगे। यहाँ आपका चैप्टर जो है फिनिश होता है, कॉपी को कंप्लीट कर लीजिए।